Hello everyone. So, before starting with the video, I just want to ask you about a question. And that's, have you ever wondered how our body stops bleeding immediately when we get a small cut? Yes, it's all because of this process, which is hemostasis. And I have already discussed the basic of this thing in the previous video. Hemostasis means to stop bleeding. Hemo refers to the word bleeding and stasis means to stop. And we have discussed it in the previous video. And now in today's video we are going to dive into hemostasis, the process by which our body stops bleeding, as I already told. And today we will specifically focus on primary hemostasis. And this is all about how platelets form that initial plug at the site of injury. And I have discussed about it in previous video that whenever, for example, this is the blood vessel, this is the endothelial cells, and this at this particular site there was some injury. So over here platelets will aggregate and form a plug. How this plug is formed, this is the whole concept which we will discuss today in this video. And we will also cover related disorders. So by the end of the video you will understand both the normal process and what goes wrong in the conditions like thrombocytopenia or platelet function defects. Also, whatever I'm going to explain today is based on the book Pathoma, and it is a very good book for pathology and specifically for USMLE. So let's get started. Okay, as I already told you in previous video, hemostasis is basically how our body prevents blood loss by clot formation at the injury site. So it could be primary hemostasis, then secondary hemostasis. In primary hemostasis, the major result is formation of weak platelet plug. This is weak, and I have already explained this in very detail in previous video. And the secondary hemostasis, its function is to stabilize this weak plug. We have discussed about this thing in previous video, that how it stabilizes it. It stabilizes the primary hemostasis, the platelet plug formed after the primary hemostasis by the process called coagulation cascade. Now let's understand that how this weak platelet plug forms. Okay, so let's get started. Also, for any of the topic related to pathology or pharmacology or any other subject of medicine, you will not understand anything by watching just beginning few minutes. If you really want to get the concept, you must watch the complete video. Okay, without wasting any time, let's start with our actual concept, which is primary hemostasis. Okay, so what happens in primary hemostasis? As I already told, this is our blood vessel, and this is lined by endothelial cells like this. Now what happens is, for example, this is a bad boy and he comes, and over here we get an injury. Now what will happen is, suppose this is the site of injury. Now
In this process, what will happen is the platelets, they will come and they will interact with this vessel wall and form the plug. So basically, in primary hemostasis, there is interaction between platelets and the vessel wall. I hope you get the point, that if platelet have to form a plug at this site of injury at the blood vessel wall, for that it needs to interact with this wall for sure. अगर इसको यहाँ पे एक फॉर्म क्लॉट फॉर्म करना है तो उसके लिए इसको इसके साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, और वो इंटरेक्शन में कुछ स्टेप्स आते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं. ओके, सो देयर आर 4 major steps involved in primary hemostasis. Okay. Step number 1 is temporary vasoconstriction. Now, what is this? What happens is, this blood vessel, it will get constricted for some period of time. And why does this thing happen? This happens to prevent the blood loss. Basically what happens is, ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हुई है ना, तो एकदम से बहुत सारा खून निकल रहा है. देखो यहाँ से भी खून निकल रहा है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा बाहर निकल रहा है. और अगर हमने इसको नहीं रोका, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म ने इसको नहीं रोका, तो ब्लड लॉस ज़्यादा भी हो सकता है. और अगर ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो उससे हमें आगे दिक्कतें हो सकती हैं. तो वेसल अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर लेती है उस टाइम पीरियड तक जब तक वीक प्लेटलेट प्लग यहाँ पे ना बन जाए. इससे क्या होता है कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में थोड़ा सा मदद मिल जाती है ब्लड वेसल को. और ये कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है? ताकि ब्लड लॉस कम हो, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो. ठीक है, तो अब ऐसा कब होगा कि किस चीज़ से वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी जब चोट लगेगी? तो देखो, जैसे ही ये मैंने ना एक स्किन का जूम्ड वर्जन बना लिया. तो बेसिकली जब हमें यहाँ पे चोट लगी एट द साइट ऑफ इंजरी, जैसे किसी भी वजह से इंजरी हुई, तो ब्रेन पे सिग्नल जाएगा. ब्रेन में क्या सिग्नल जाएगा? कि हमें चोट लग गई है, अब हमें दर्द हो रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा. तो क्या होगा कि ब्रेन आगे से सिग्नल भेजेगा, नर्व स्टिमुलेशन. और ये जो एंडोथीलियम है, ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये सेल्स क्या सिक्रिएट करेंगे? एंडोथिलिन. क्या सिक्रिएट करेंगे? एंडोथिलिन. जब ब्रेन तक सिग्नल गया कि चोट लगी है, खून निकल रहा है, अब इसको रोकना पड़ेगा. इसको रोकने के लिए फिर ब्रेन भेजेगा नर्व सिग्नल. ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, कि अगर आप कोई बहुत ही, ये मतलब आइस है, इसको तुम टच करोगे तो एकदम से हाथ पीछे को जाएगा. क्यों जाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन. ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. स्टिमुलाई, कि अगर तुम्हारे कोई मुंह पे थप्पड़ मारेगा तो तुम अपना मुंह पीछे कर लोगे या फिर खींच के उसके मारोगे. क्यों? क्योंकि एक रिफ्लेक्स एक्शन है भाई. सो यहाँ पे भी यही होगा कि जैसे ही चोट लगेगी, खून निकलेगा, तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि भाई अब यहाँ पे हमें क्लॉट बनाना है. तो उसके लिए एंडोथीलियल सेल्स तुम एक्टिवेट हो जाओ और क्या सिक्रीट करो? एंडोथिलिन. और जैसे ही ये भाई साहब हमारे काम पे लग जाएंगे, तो ये क्या करेंगे कि वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देंगे. वेसल जब कंस्ट्रिक्ट होएगी तो यहाँ से जो खून पहले
पूरा पूरा भाई खुल्लम खुल्ला बाहर निकल रहा था, और यहाँ से नीचे भी लीक कर रहा था क्योंकि यहाँ पे चोट लग गई थी। अब क्या होगा, अब ये वेसल का एरिया कम हो गया, इसका ये ल्यूमन जो था ये कम हो गया, तो पहले जो खुला खुला ब्लड जा रहा था वो इतनी सी जगह से जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ से जो ब्लड भी निकल रहा था वो भी कम हो जाएगा, और यही तो हमारा काम था। ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. So the first step is temporary vessel constriction, and it is mediated by, I already told you, nerve stimulation. We can also call it as nerve signal. और वो कहाँ से आता है, वो ब्रेन से आता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है, जो कहता है कि एंडोथिलिन रिलीज हो जाए. व्हाट इज दिस? ओके, सो ये कहते हैं एंडोथिलिन रिलीज हो जाए. और एंडोथिलिन कहाँ से रिलीज होता है? इट इज़ रिलीज्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स विच आर बेसिकली which lines the blood vessel wall. ओके, अब वेसल कंस्ट्रक्ट होगी तो अब प्लेटलेट्स का यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा. अब प्लेटलेट्स कहेंगे कि वेसल कंस्ट्रक्ट कर गई, अब जल्दी जल्दी से हम आते हैं और क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं. ओके, सो अब अगले 3 स्टेप्स जो हैं, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, क्या मैंने 5 भी बना दिया? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. देयर आर 4 स्टेप्स. ओके, तो अगले जो 3 स्टेप्स हैं, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड वन वर्ड विच इज़ प्लेटलेट. ठीक है, तो अब जब वेसल कंस्ट्रक्ट कर गई, अब यहाँ पे प्लेटलेट आएगा, तो प्लेटलेट क्या करेगा? हवा में घूमेगा क्या? नहीं, प्लेटलेट यहाँ पे चिपक जाएगा. तो दूसरा स्टेप यही है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट अधेशन. अधेशन मतलब चिपकना. तो प्लेटलेट्स यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, प्लेटलेट यहाँ पे आके चिपक जाते हैं. और वो कैसे चिपकेंगे? हाउ दिस थिंग अकर्स? इट अकर्स वाया अ फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज VWF, जिसका नाम है वॉन विलिबर्ड फैक्टर. So what happens is that जब यहाँ पे चोट लगी तो बेसिकली कोलेजन एक्सपोज हो गया. ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, इसके नीचे कौन सी लाइनिंग होगी? ये एंडोथीलियम है, तो इसके नीचे क्या होगी? सब एंडोथीलियम. तो यहाँ से जो सब एंडोथीलियल कोलेजन था ना, वो एक्सपोज हो गया, वो बाहर आ गया. ठीक है, what is this? Subendothelial collagen, and it is exposed here. Okay, these are endothelial cells. Okay, so what happens over here is, अब देखो प्लेटलेट है, अगर प्लेटलेट ने यहाँ पे चिपकना है, इसके साथ इंटरेक्शन करनी है, अगर वो सीधा ही आएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा, इतना ही इजी कॉन्सेप्ट होता तो मेडिसिन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सी कथा है, रामायण है पूरी पढ़ने वाली, और वो ये है कि सबसे पहले सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज होगा, और जो प्लेटलेट महाराज हैं वो डायरेक्टली इससे बाइंड नहीं कर सकते हैं, वो इससे डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते हैं. बीच में एक हमारे सेवक आते हैं, और वो सेवक का नाम है VWF, वॉन विलेबर्ड फैक्टर. वो फैक्टर इस कोलेजन से डायरेक्टली बाइंड कर जाता है. इट कैन डायरेक्टली बाइंड टू दिस थिंग, एंड प्लेटलेट कैन बाइंड टू दिस पर्टिकुलर थिंग. कैन यू गेट द पॉइंट? कि अब हम कह रहे हैं कि मैम प्लेटलेट का सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है. मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि इन द प्राइमरी हेमोस्टेसिस इट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन प्लेटलेट्स एंड द ब्लड वेसल वॉल. सो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट डायरेक्टली
इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। बीच में कुछ और फैक्टर्स और रिसेप्टर्स आते हैं। दिस प्रोसेस इज बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ बी, इट इज़ बी, ए इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। मैथ्स में पढ़ा है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी. I hope you get the concept. Not extending this thing because it's not that important. So coming on the main thing is that at the site of injury, subendothelial collagen is exposed, और VWF which is von Willebrand factor ये जाके इससे डायरेक्टली बाइंड कर जाता है, और प्लेटलेट बाइंड करता है इस फैक्टर से, और वो बाइंड करता है थ्रू अ रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर का नाम बहुत ज़रूरी है जो कि है GP1B रिसेप्टर. ये रिसेप्टर की मदद से प्लेटलेट जो है वो इससे चिपक जाता है, मतलब इनडायरेक्टली प्लेटलेट इस वॉल से चिपक गया है. ओके, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट अधेशन. और इसमें अब आपको बस एक और चीज़ याद रखनी है कि ये कहाँ से आता है. देखो, एक तो ये चिपका है इस चीज़ से, दूसरा ये चिपका है इस चीज़ से, तो बस यहीं से आता है. ये फैक्टर आता है अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट से. प्लेटलेट के अंदर अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स होते हैं, वहाँ से आता है. या फिर आएगा ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना हमारे, ये ना एक चीज़ रिलीज़ करते हैं जिसे कहते हैं WPB, जिसे हम कहते हैं विबल या वाइबल पैलेड बॉडीज़. और ये जो बॉडीज़ होती हैं ना, ये आगे सिक्रीट करती हैं VWF, P सेलेक्टिन. ये हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि ये क्या चीज़ें होती हैं, है ना. ये सब पता है हमें कि ये इन्फ्लामेशन में अपना काम मतलब बहुत मेजर रोल है WPB का, विच इज़ विबल या वाइबल पैलेट बॉडीज़. इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन इन्फ्लामेशन एंड वी हैव स्टडीड अबाउट इट. ओके, सो जो ये है, it is released by two things. The first thing is the Weber palate bodies which are secreted by endothelial cells, and ये प्राइमर क्या कहेंगे इसको, मेजर सोर्स है, या इट्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ secretion of this factor. And the secondary source is platelet, और उसमें कौन, अल्फा ग्रेन्यूल्स. I hope you get this point as well. Coming up to step number 3. Step number 3 is, अब प्लेटलेट आके चिपक गया, प्लेटलेट क्या करेगा, फट जाएगा. क्या करेगा, फट जाएगा. अरे भाई, फटना ही था तो बाहर ही फटता, यहाँ पे क्या काम है इसका फटने का. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. प्लेटलेट आया और प्लेटलेट चिपकने के बाद अब ये फट जाएगा. इसे हम कहते हैं प्लेटलेट डीग्रेन्यूलेशन. डीग्रेन्यूलेशन मतलब जब ये फटेगा तो अपने अंदर से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर सिक्रीट कर देगा. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लेटलेट रिलीजेज इट्स केमिकल्स. इट रिलीजेज इट्स केमिकल्स. सो मेजर 2 चीज़ें रिलीज़ करता है ये. एक करता है ADP और दूसरे हैं हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2. TXA2 भी कहते हैं इसको थ्रोम्बोक्सिन A2 कहते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जब ये प्लेटलेट यहाँ पे चिपक गया उसके बाद ये फट जाएगा और ये रिलीज़ करेगा ADP. बड़ा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मॉलिक्यूल ADP एंड हेयर वी हैव TXA2. ठीक है, तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ADP और ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं. ये प्लेटलेट जब फटता है तो प्लेटलेट के अंदर से रिलीज़ होते हैं, लेकिन प्लेटलेट के अंदर कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, समझने वाली चीज़ है, और ये बहुत हाई क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. जो ADP है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम, अब देखो ये प्लेटलेट है, ये फटेगा, इफ़ इट विल बर्स्ट आउट, ये बर्स्ट हो गया अगर, तो इसके अंदर से ही निकलेगा ना ये और ये. तो दोनों जिससे भी निकल रहे हैं ऑफ कोर्स दे आर द पार्ट ऑफ प्लेटलेट इटसेल्फ. पर प्लेटलेट के अंदर भी कई चीज़ें होंगी ना,
तो ये वहाँ से निकलते हैं। जो ADP है वो निकलता है प्लेटलेट डेंस ग्रेन्यूल से, और जो TXA2 है वो निकलता है प्लेटलेट साइक्लो ऑक्सीजनेज से। और साइक्लो ऑक्सीजनेज कितना इंपॉर्टेंट है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 कितना इम्पॉर्टेंट है वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए हमें पता है, और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए भी। हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ रखा है कि एक ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड एक मतलब नॉर्मल विस्कोसिटी से फ़्लो करता है, और वो किस वजह से होता है, वो दो चीज़ों की वजह से होता है। एक होता है PGI2 विच इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड TXA2। जो ये PGI2 होता है ये वैसो डायलेशन कराता है, मतलब वेसल को खोल के रखता है, ठीक है, ताकि ब्लड आसानी से फ़्लो कर पाए। और TXA2 वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और ये दोनों बैलेंस में होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो नॉर्मल रहती है और ब्लड आराम से फ़्लो कर पाता है। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा या कम हुई तो उससे दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर PGI2 नहीं बनता है किसी भी तरह से, या फिर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ऑल्टरेशन आती है, तो उसकी वजह से TXA2 ज़्यादा हो जाएगा, और जब भी वेसल कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होएगी तो उस केस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इम्बैलेंस हो गया, या फिर क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएंगे, और क्लॉट ज़्यादा बनेंगे तो देयर कुड बी रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है बीच में, ये इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, लाइक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एवरीवन शुड नो। ओके, talking about the major concept which we were discussing was the platelet degranulation. So platelet degranulation is basically when the platelet bursts up after getting adhesed to the surface of um, endothelium indirectly via this VWF, this factor and this receptor. When platelet get adhesed to this surface, it bursts up, and the dense granules inside the platelets releases ADP, whereas the cyclooxygenase inside the platelet releases TXA2. And this is the most simplest language in which anyone could explain you. How could we remember? देखो TXA2 का साइक्लोऑक्सीजनेज है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, और ये इम्यूनोलॉजी में भी और फार्मा में भी जब आप कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, इवन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, वहाँ पे ये बहुत बार जिक्र आ चुका है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको नहीं पता होगा फॉर वेरी श्योर। और जब हम बात करते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स की, वी कैन रिमेंबर इट लाइक कि डेंस ग्रेन्यूल्स में ज़्यादातर हमारे जो पेपर होते हैं वो MCQ फॉर्म में होते हैं, तो हम लाइक एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमने 3-4 बार इस चीज़ को पढ़ा होगा तो वी कैन ईजिली टिक द करेक्ट ऑप्शन ओवर देयर, दैट प्लेटलेट डेंस ग्रेन्यूल्स में D आ रहा है, तो ADP में D आ रहा है, तो ADP यहाँ से रिलीज होता है। टॉकिंग अबाउट द स्टेप 4, अब प्लेटलेट फट तो गया और ये चीज़ें रिलीज़ कर दी, अब क्या करेगा प्लेटलेट? और ये रिलीज़ जो कर दी हैं भाई साहब, इनका क्या काम है? तो क्या होता है ना कि प्लेटलेट फटेगा तो हमें पता है कि क्लॉट कब बनेगा, जब एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से चिपकेगा। बहुत सारे प्लेटलेट इकट्ठे होंगे तो एक गुच्छा बना लेंगे, जिसे हम कहते हैं अपनी अंग्रेज़ी भाषा में प्लग बन जाएगा, और वही तो हमें बनाना है। और वो कैसे बनेगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन के प्रोसेस से, जो कि हमारा स्टेप 4 है, मतलब प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेंगे। सो प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो प्रोसेस होता है, ये पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है हमने कि ये ADP और TXA2 का काम क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, पर हमें ये भी जानना है कि इनका फंक्शन क्या है। देखो थ्रोम्बोक्सिन जो है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेसल कंस्ट्रिक्शन और क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसका क्या मतलब है? अगर क्लॉट बनेगा तो कैसे बनेगा? मतलब ये प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ेगा, और अगर प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्लॉट। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन प्लेटलेट एग्रीगेशन। इन शॉर्ट इट हेल्प्स इन, ये क्या प्रमोट करता है? प्लेटलेट
एग्रीगेशन को. I have very clean and clear notes for this concept, and I can show. I have very clean and clear notes like this, and if anyone wants it can comment or could mail. Okay. So the next process is platelet aggregation, जिसमें TXA2 हमारा बहुत ही बड़ा योगदान करता है. और ADP क्या करता है? जब आप पढ़ोगे कि प्लेटलेट एग्रीगेट करते हैं तो भाई सीधा ही जाके तो नहीं चिपक जाएंगे. अगर सीधा ही चिपकना होता तो इतना इजी कंसेप्ट नहीं होता, मेडिसिन नहीं पढ़ रहे होते या फिर हर कोई डॉक्टर होता. वेरी सिंपल थिंग. सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज कि जैसे यहाँ पे प्लेटलेट सीधा ही यहाँ पे नहीं चिपकता, बीच में एक फैक्टर आता है, एक रिसेप्टर आता है, वैसे ही एक प्लेटलेट को जब दूसरे प्लेटलेट से चिपकना होता है तो बीच में एक मॉलिक्यूल आता है, हमारे विचोला साहब आते हैं, और वो है फिब्रिनोजन. और वो फिब्रिनोजन से भी ये डायरेक्टली नहीं चिपक जाते, रिसेप्टर आता है वहाँ पे. यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर था? GP1B. और यहाँ पे रिसेप्टर का नाम पता क्या है? यहाँ पे रिसेप्टर का नाम है GP2B एंड 3A. 2 रिसेप्टर्स हैं, एक है GP2B एंड अदर इज GP3A. ये 2 रिसेप्टर्स यहाँ पे आते हैं. और इन 2 रिसेप्टर को प्रमोशन जो है इसकी, या फिर इनका जो एक्सप्रेशन है कि ये यहाँ पे आके प्लेटलेट के सरफेस पे एक्सप्रेस हुए ताकि फिब्रिनोजन आके बाइंड कर सके, वो काम करवाता है हमारा ADP. आई होप यू गेट द पॉइंट. तो प्लेटलेट एग्रीगेशन अब हम बात करें तो क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये हमारी ब्लड वेसल है. यहाँ पे जैसे ही इंजरी हुई, एंडोथेलियल सेल्स हैं अगल बगल में, काफ़ी बड़े बन गए. चलो, तो यहाँ पे इंजरी हुई तो ये हमारा सब एंडोथेलियल कोलेजन आया और ये यहाँ पे आके ये बाहर निकल गया, ये एक्सपोज हो गया, जिसके साथ आप साथ साथ में रिवाइज भी कर सकते हो. VWF जो हमारा है वॉन विलेबल फैक्टर, वो जाके बाइंड कर गया अच्छे से, जिसके साथ प्लेटलेट बाइंड कर गया. और प्लेटलेट कैसे बाइंड करा? वाया अ रिसेप्टर, एंड दिस रिसेप्टर इज, थोड़ा सा ना, जस्ट अ मिनट, दिस इज GP1B रिसेप्टर. फिर प्लेटलेट ने ADP और TXA2 को एक्सप्रेस किया, इसने हेल्प करी प्लेटलेट एग्रीगेशन में, इसने अपने केमिकल्स रिलीज़ करे, है ना, इन्होंने अपने अपने मतलब कंटेंट्स रिलीज़ करे और हेल्प करा आगे काम में. तो पहले ADP आएगा. ADP क्या करेगा कि ये एक प्लेटलेट है, ऐसे ही यहाँ पे और भी प्लेटलेट्स होंगे, यहाँ पे एक प्लेटलेट और होगा और होगा और होगा, काफ़ी सारे होंगे. तो हमने पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पे दूसरा प्लेटलेट यहाँ पे अटैच्ड है, ये पहला प्लेटलेट है, तो इसके सरफेस से भी ADP आएगा. और इन्होंने क्या करा कि प्लेटलेट के सरफेस पे अब एक्सप्रेस करवाया इस रिसेप्टर को, विच इज़ GP2B3A. और यहाँ से भी ये रिसेप्टर आया GP2B3A. यार वी हैव टू राइट इन रोमन नंबर्स. ओके. और बीच में हमारा जो मॉलिक्यूल आता है वो है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन के साथ ही दोनों ही रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं. ये वाला रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करा, ये वाला रिसेप्टर यहाँ पे बाइंड करा, और जब ये बाइंड करेंगे तो ये प्लेटलेट और ये प्लेटलेट आपस में चिपक जाएगा. और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटलेट चिपकते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, चिपकते जाते हैं. और इस जगह पे क्या होगा, ये हमारी यही वॉल है, ये एंडोथेलियम है. लास्ट में ये प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए बहुत सारे, और ये क्या बन गया, एक वीक प्लेटलेट प्लग, जिसके आसपास नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कैसे फिर कोगुलेशन कैस्केड यहाँ पे शुरू होगा, और उसकी वजह से सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जिसे हम कहते हैं प्रोसेस, वो शुरू होता है, जो कि इस प्लग को बेसिकली स्टेबलाइज करता है. और वो स्टेबलाइज कैसे करता है, इसके ऊपर एक अपना नेटवर्क बिछा देगा, और
ये जो प्लग है ना, इसको एक मतलब स्ट्रेंथ बन जाएगी। मतलब ये अंदर एक बच्चा है, सपोज करो ये एक बच्चा है जो रो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है, तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा सैड है। अगर इसके ऊपर कोई टेंट आ जाएगा या घर बन जाएगा इसको, तो ये खुश हो जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है, ये वीक प्लेटलेट प्लग है। जब इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फिब्रिन मैश का नेटवर्क आ जाएगा, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कोagulation कैस्केड में। कोagulation कैस्केड में क्या होता है ना, एक फिब्रिन मैश बन जाता है, तो वो जब इसके ऊपर बन जाएगा तो फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे से खून निकल रहा होता है और उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है, तो हम लोगों की गंदी आदत होती है कि हम इसे प्रिक करते हैं, हम इसको खींचते रहते हैं। दैट वी शुड नॉट डू। ओके, सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट of primary hemostasis. Now let's discuss about disorders disorders of primary hemostasis, and we will discuss it in another part.